Yes, sir. Perfect. Imagine I got a table here. मुझे करनी है थोड़ी सी data entry. I need to make some data entries, but I don't want to make mistakes. अच्छा ये as a data or as a business analyst, like you will be using very rarely to this things, not rarely exactly, but again, you will come to know the benefit of data validation. It can be beneficial every time for you. Let's say you are making some entry and if you want कि कोई इसमें मेरी मर्जी के बिना कुछ और टाइप ना करे. Like if I'm giving gender, then they should type either male or female, nothing else. Getting me? है ना? Yes. उसके अलावा कोई कुछ और टाइप ना करे. Let's say department में whatever designation I have, only these designation should be available जो मैंने right hand side में लिखी है, उसके अलावा और कुछ नहीं. So ये सारी चीजें कैसे possible होती है? Like let's say these are 15 entries only. If it is more than 15, for an example, let's say 200 or something like that, then it's gonna be a challenge for me, right? क्यों? क्योंकि I may feel tired. Let's say I started typing mail and I'm typing all the times like this one, but मैंने सिर्फ mail type किया तभी भी मेरा काम चल रहा है. Well, let's say गलती से मुझे नींद आ गई and I started making mistake. Can you see this? I'm human. I can make mistake, right? Everyone. Yes, sir. एक second देना. Give me a second only. Okay. 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 No, I don't want. Yeah. Sorry. My bad. ठीक है. तो ये गलतियां मैं कर सकता हूँ. What I want कि गलतियां ना हो और इसके अलावा मैं कुछ और टाइप करूं तो वो टाइप नहीं होना चाहिए. That should not be entered over here. ऐसा कोई रूल हो सकता है? तो yes. And apart from this, I don't want to type. There should be a drop down button जैसे अभी यहाँ दिख रहा है. Can you see this? Can you see this, everyone? These are drop down. Hello. Mic testing. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है. तो मैंने एक बार मेहनत किया. I did hard work only once. बस मैं इसी का फायदा उठाऊंगा. बट कैसे? Let's say I want to fill up over here. What? Male and female. Cool. I selected the entire column. मेरी आवाज सबको सब क्लियर आ रही है ना? Yes, sir. एक सेकंड और देना जब इतना टाइम दे रही है तो. किसी को कोई सवाल है तो पहले पूछ लेना. एक सेकंड. Perfect. So I selected this column. When I go to data, in data tools we have another button. कल तो हमने सीखा था text to column. You remember? उसी के नीचे इस तरफ आना. Can you see this green tick and stop icon? If you can't see, then I can open magnifier and I can show you. Can you see that stop icon and green tick? Hello. Yes. Yes, sir. ठीक है. इसके पास में ड्रॉप डाउन भी है जहां पे डेटा वैलिडेशन मिलता है. वैसे इसका नाम भी डेटा वैलिडेशन ही है. So let me help you what exactly the data validation is and what kind of options it will give it to me. So I did click there. I did open a pop-up in front of me जिसमें तीन चीजें हैं. Settings, input message, and the last one is error alert. फिलहाल I'll go with the settings. So अब we are talking about male and female. Male and female whole number तो हो नहीं सकता. Correct? It is asking me the validation criteria. And decimal is also will not be the suitable one. Correct? No? Yes, sir. तो क्यों ना मैं इसको एक लिस्ट दे दूं जिसमें मेन्यूज ओके ऑप्शन आ जाए. सो लिस्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. डू नॉट गो विद द कस्टम. लिस्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके फाइन. ये बोला सोर्स क्या है? आई सेड सोर्स ये है. दैट्स इट. यही करना था. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. आई सेड क्लिक ऑन ओके. नाउ कैन यू सी ड्रॉप डाउन हर इस पे आ रहा है सेल पे. कैन यू सी दैट? कैन यू सी Yes, साइड sir. ड्रॉप डाउन? अब मैं यहाँ पे क्या? आई डोंट वांट टू टाइप. आई कैन सेलेक्ट इट लाइक दिस. आई डोंट वांट टू टाइप. लेट्स से कोई फीमेल है तो उसके लिए सेलेक्ट द फीमेल. सिंपल. और अगर गलती से मैंने सिर्फ एम भी लिखा तो इट विल वर्क. डिड यू सी दैट? बट गलती से आपने ये लिख दिया. oops, the value doesn't match the data validation restrictions defined for the cell. आप सीधे वापस रिट्राई करते हो. if you're typing like this तो ये हो जाएगा. हाँ, गलती से किसी ने यहाँ चेंज कर दिया. if someone is changing over here then obviously that wrong practice will be there. उसके लिए बाकी सब गलत है. जब मैं आयरन मैन लिखूंगा तो डेफिनेटली आयरन मैन will be there. so I'm making mistake by myself to show you something at the end, right? तो source आपका correct होना चाहिए. Let's say once you are done with the data entry, you can delete the source or you can delete the entire data validation. आपका data as it is रहेगा. Clear?
Clear, everybody? Guys, are you there? Yes, sir. फिलहाल मैं सिर्फ अपने हाथ का इस्तेमाल करके I'm just doing it. चलो डेटा एंट्री तो हो गई. I'm not sure the last person is male or female. अभी के लिए रहने देते हैं. Similarly, you can go and pick the department as well. For you need to go to data validation. Again, the list. Then you go here and you give the source. That's it. Look at that. All the sources are here. Can you see? Easy था ना? नहीं था Yes, क्या? sir. Yes, sir. And you can pick the relevant department and you are good to go. आपने इतना भी लिखा तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे. आपने इतना भी लिखा तो जो उससे चालू होता है वो आ जाएगा. Right? Easy है? Yes, sir. Is it easy for all to understand? Hello? Yes, Can I sir. get the confirmation from everyone? Yes, sir. Yes, sir. देखो कॉन्फिडेंट साउंड देना. अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो प्रैक्टिस कर पाओगे. लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू वन मोर थिंग. आपके लिए एक सॉल्यूशन और दे सकता हूं मैं. इन फ्यूचर लेट्स से यू वांट टू डू प्रैक्टिस और आप यहां से इसको ओपन कर रहे हो एंड इट इज वर्किंग बिट स्लो, देन गाइस मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. वहां पे मैंने छोटी छोटी प्रैक्टिसेस की हुई है which will be beneficial for you. Let me show you. You just go to this. I mean, the channel name is Data Doctor Academy. I know, मैंने recently last month इसको बनाया है, so it will take time. इसमें Python से भी related कुछ videos हैं, कुछ related to Tableau, कुछ related to Excel. जैसे these are the function which you're going to learn right now. जैसे auto dates. I was telling you about the date function yesterday. You remember? है ना? Yes. ठीक है. How to use conditional statement, ये आगे आप सीखोगे conditional formatting. अभी जो आज मैं सिखाऊंगा, and it's all about the conditional formatting. Right? इसमें आवाज थोड़ी कम मिलेगी आपको कि मैंने आवाज कम की है. जो भी मैं सिखाऊंगा वो तो अभी सिखाऊंगा. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट द 9 डिफरेंट फंक्शन. तो यहाँ पे ऑल द 9 डिफरेंट फंक्शंस के बारे में बात की है मैंने. कैन यू सी? हाँ, Yes, sir. हाँ, ये पूरी इंग्लिश में हो सकती है इनिशियली, बट उसके बाद में देयर आर फ्यू मोर थिंग्स. Whenever you will search on YouTube, the Data Doctor Academy, you will find this channel. Okay. As I told you, that अभी recently develop हुआ ये, so I'm uploading videos on a frequent basis. मतलब जब टाइम मिल जाता है तब मैं जरूर कर देता हूँ for sure. जैसे you will get more ideas about the dashboard in Tableau. You will get more idea about the operators. That is exclamatory symbol and equal to symbol. Right. 2.0, right? So I hope you understood and enjoy this assignment operator. But along with this, I'm going to continue with Clear? समझ में आ गया? तो अगर आप वहां पे भी चाहेंगे तो छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे सॉल्यूशन you will get over there too. Clear? Guys? Yes, sir. Yes, sir. Give me 2 minutes. Give me 2 minutes. Give me 2 minutes. Yeah, sorry, back. अब लास्ट वाले पे हम जाते हैं. इट्स ऑल अबाउट सैलरी. तो क्राइटेरिया सिर्फ इतना सही नहीं होता दैट वी जस्ट अपलोड इट कि एंट्रीज हो जाए, डेटा एंट्रीज हो जाए, समथिंग लाइक दैट. इतना ही नहीं है. वी हैव मेनी मोर थिंग्स टू शो. जैसे कि मान लेते हैं कि आई जस्ट वांट टू पुट अ सैलरी over here between 20,000 to 50,000 only, not less than 20,000, not greater than 50,000. Is it possible? Then yes, it is. You? Yeah, I will go to pick the salary column. Then I'll go to data validation. I'll go with let's say whole number. Salary whole number में ही होती है. Did you ever hear कि मेरी salary 35,000 rupees and 50 पैसा है? ऐसा कोई बोलता है क्या? No. नहीं, क्या पता गलती से बोल दे कोई. नहीं ना? We never talk about like this. हाँ, हो सकता है writing में you will get, but again most of the time they try to give you the round figure. Correct? So now I'm choosing whole number. अब whole number by default आपको दे रहा है between, but choice will be yours the way you want to type, whatever your conditions are. Accordingly, you can just pick it from here. Right now I'm choosing between. So if you're choosing between, you are setting an amount, let's say 20K to 50K. Understood? Understood? Mic testing. Yes, sir. Yes, sir. Right.
उसके अलावा I will teach you what is alert. इसमें there are three things. One is stop, second one is warning, third one is information. What do you mean by stop, guys? इंग्लिश में अगर stop बोलते हैं इसका क्या मतलब होता है? रुक जाना. रुक जाना, like completely restricted or something, है ना? Yes, sir. है ना? स्टॉप का मतलब यही हो गया वार्निंग. मतलब वार्निंग तो अलग चीज होगी, स्टॉप का मतलब मींस रेस्ट्रिक्टेड, है ना? सिंपल बात समझ में आई? वार्निंग होती है कि लेट मी गिव यू वार्निंग, बट स्टिल यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स. नो? हाँ, everybody. Yes, sir. Or information means I'm giving you information. It's your choice. You still want to make mistake or not? Guys, getting me? Yes, sir. Yes, sir. Just give me a minute. Yes, sorry. So, yeah, okay, let's go. Let's go. And then first I will choose the stop. Stop means I'm giving a strict warning that, buddy, don't make mistake. जो भी थोड़ी देर पहले हो रहा था, it was not allowing me to type anything else, right? Yes, no? Whenever I was writing anything else instead of male and female, was it allowing me to do anything else, or it was stopping me completely? It was allowing. No, it Stop was it not. completely. It was not allowing. अगर मैं मेल की जगह कुछ और लिखूंगा तो will it allow me? इससे No. पिछले वाले में पूछ रहा हूं मैं, यहाँ की बात कर रहा हूं मैं. Will it allow? No. देखो, मैं यहाँ अगर फीमेल की जगह मैं लिख देता हूँ औरत, will it allow me? No. No, that's what I'm asking. कि ये बिल्कुल भी allow नहीं करेगा. That's what I was showing you there. When you pick it, when you go to data validation, when you set an amount over there, let's say 20K to 50K. मैंने यहाँ 20,000 चूज किया and यहाँ 50,000 चूज किया. Okay, I'm going there, error alert, and I can make my own error. Let's say, oops. Okay, everyone? Yes, sir. गलती हो गई, right? Yeah, I created bug for myself. All right, I'll just go to settings and click on OK. Okay, nothing will change. आप जब तक इस रूल को फॉलो कर रहे हो तब तक everything is good to go. Understood? No? Yes, sir. जब तक, let's say मुझे नींद आ गई, I started feeling sleepy and I missed 10. Oops. Can you see it now? Can you see it now? Yes, sir. Yes, sir. What exactly it is showing you there? Oops, गलती हो गई. Bro, please wake up and type the amount correctly. Whatever like error message you have created, it is showing. Any question for now? Guys, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? समझ आ रहा है सर. Okay, I'll retry, which means I missed a 10. Oops, then it is good to go. Let's say I gave this task to my junior and that junior was a bit over smart because he knew something about it. So he will just go there. Instead of that stop, he selected the warning. Okay, fine. Then is he allowed to make mistake? Oops. It will give you that same error message, but still it will ask you yes or no. So if you say yes, you're allowed to make mistake. Can you see? Yes, sir. But this pop-up will ask you again and again and again. वो थोड़ा सा irritate हो गया. What did he do? वो यहाँ जाता है, information को choose कर लेता है. इसमें होगा क्या? Let's say if you're correctly typing this, fine. But जल्दी से एक amount उसने extra फिर से लिख दिया. It will just inform that okay, you were doing mistake. That's it. But you were allowed to type. Did you see the difference? Did you find the difference? Yes, no? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो उसने गलती करी. उसके बाद he selected the entire column again and then he just went there
and selected what? Selected again the stock. कि सर को तो क्या ही पता चलेगा, है ना? ऐसा हो सकता है ना? If there are 2000 entries, it can be skippable. Yes, no? Yes. कि सामने वाला कितना ही चेक कर लेगा. But data validation tool अपने आप में इतना powerful है that you within a click you can get an idea wherever the mistakes will be there. will there. दिखाऊं मैं कैसा दिखता है? हाँ? Yes, sir. Okay. Let me show you. आप सिर्फ और सिर्फ पूरी शीट में जहां पे भी गलती होगी, can you see this drop down button? Once you click there, can you see second option? Circle invalid data. Everybody? Yes, sir. You just need to click on that. Look at that. Wherever you see mistakes, according to the policy, these numbers are wrong. This information is wrong. That's why you got the red circle. So let's say if you fix it, this red circle will go away. I don't know where, but will definitely go away. अभी नहीं हुआ, तो you will have to type it. I mean, select वाले options में से मत करो. अगर if you type like mail, तो ये चला गया. देखा? देखा? जैसे यहाँ पे करना है. Look at this. जैसे it was about 15. So look at this. No circle at all. Clear? Data validation की यहाँ तक की चीजें समझ में आई? और ये कहाँ यूजफुल हो सकता है वो समझ में आया? Yes, sir. Perfect. उसके अलावा what else we can do with data validation? Data validation में और भी elements हैं जैसे कि input message. उसके अलावा let's say if there are certain rules, let's say मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे minimum 2 characters वाले name अलाउ, sorry minimum 3 characters और maximum 10 characters. 2 characters like किसी का नाम ओम है, but company doesn't understand that like name और उन्होंने क्या दिया कि we are not allowing the fancy names. It's okay, but you still can type it. मैं rule होगा तभी भी. कुछ नाम होते हैं, few names are there, the bigger one. Have you seen the Bollywood movie where Javed Jafri and another guy, Sharman Joshi, I guess, they were asking about a name from a driver when they were moving to Goa. Do you remember that dialogue? Yes, sir. Yes, sir. Iyer, Chinnagopal Iyer, Radha Swami Chinnagopal Iyer, Attapattu Radha Swami Chinnagopal Iyer. Yeah. Right? Yes, sir. Venkateshwar Attapattu Radha Swami Chinnagopal Iyer. You remember this? The movie name was Dhamal, I guess. They were trying to find out the Bada W. Right? चलो अच्छी बात है. But I guess if I'm keeping such name, it will be more than 10 characters. Don't you think so? Nobody can remember your name. Either we will call him Iyer or Radha Swami or any like picky name we will find, right? Right? Yes. So यहाँ पे वही चीज है. I set a rule. Let's say I just went like over there. मैंने क्या किया? I will select here. Let's say text characters. So क्या होगा यहाँ पे? If somebody is keeping Om, oops, I got an error. But yesterday I did teach you something that there is one more character is there which is invisible but visible. That is called space. So minimum 3 characters are allowed, right? So OM in a space. Did you see? Did you see? Yes, sir. Yes, sir. We always get a hack. Yes, Pratik, what do you want to ask? मैं सर गलती से उठ गया था. Okay, गलती से हो गया था, कोई बात नहीं. इसलिए तो डेटा वैलिडेशन में सिखा रहा हूँ, यहाँ गलती नहीं होगी. ठीक है. उसके अलावा there are a few more rules which you can set. Let's say dates related entries, times related entries. So data validation is all about restricting the data. Like if you want कि somebody should type like this and this only, nobody can enter any other information, any other like time slot or anything. समझ में आ गया? बाकी फिर भी कभी लगे तो Copilot on करो, ask the same thing what I'm doing over here. Hi, Abhishek. Hey buddy, what you doing? Hey there. Looks like you're deep into your Excel sheets, juggling a bunch of functions and data validation. Let me know if there's anything you want to tweak or explore in here. Well, I got a question in my mind that what is data validation and why do we use it? I mean, as a data or as a business analyst? All right, so data validation is basically a way of setting rules on what kind of info can go into a cell.
So if you want to make sure that people only enter numbers or pick from a drop-down list, like I see you've got a department and generalist there, that's data validation at work. It just helps keep your data clean and consistent. Make sense? That makes sense. Can you repeat the same thing in Hindi language as well for a few candidates of mine, if you don't mind? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है कि आप अपने एक्सेल शीट में कुछ नियम सेट कर दें कि कौन सा डेटा आ सकता है, जैसे कि सिर्फ नंबर इनपुट हो या कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुना जो आप अपनी शीट में डिपार्टमेंट और जेंडर के लिए करें। इससे आपका डेटा साफ सुथरा और एक समान रहता है। Thank you. All right, so Understood, everybody? Hello? In both languages, understood what is data validation? Yes, sir. आवाज आ गई थी? Yes, sir. वो पायलट जो बोल रहा था आवाज आ रही थी ना? हेलो गाइस, इससे बेहतर है कि आप लोग अनम्यूट रखें अपने आप को। यू आर टेकिंग सो मच टाइम टू रिस्पॉन्ड और सिर्फ एक ही दो जने बात कर रहे हैं पूरी क्लास में से। कम ऑन, यू गाइस आर 10 मेंबर्स। नो वन, कैन यू हियर मी? जी सर, आई कैन हियर यू। Yes, sir. आवाज आ रही है ना? जी व्हाट अबाउट यू पृथ्वी, एस विनय, श्रद्धा, श्रेया पाटिल, वंश? Yes, sir. यस सर। किसी को कोई सवाल है, फील फ्री टू आस्क। ठीक है, ठीक है। ओके सर। Yes, sir. Now we are going for conditional formatting. सिंपल सी बात है, इसके नाम में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। नंबर को फॉर्मेट करना विद आर कंडीशंस, करेक्ट? लेट्स से कंडीशन ये है that it's a like retail store data set. My boss said, like he put a condition in front of me that you have all the sales. Can you show me top 10 sales? I said yes. I don't need to apply any filter. I don't need to apply anything else. Just one thing, that is conditional formatting. So you go to home. Home पे आप गए. Home पे जाने के बाद style में जाओ. You need to go to style. Can you see the style वाला section? This. Can you see conditional formatting? Yes, यस sir. सर। दिख रहा है ना? So I'm gonna pick conditional formatting. Simple. But तो पहला, I just go here. Can you see top and bottom rules on the second number? Yes, sir. ठीक है. We'll go to top and bottom rules. Look at that. Top 10 items. By default, it will come with a red color. By default, it will come with a light red fill with dark red text. Or by default, it will come with 10. Let's say if I want to find out top 5. So go with top 5. I mean, you can change the numbers. It will show you top 5 numbers. जो ऊपर से लेके नीचे तक की कैटेगरी में आते हो. Obviously, it's not in ascending order या descending order, इसलिए आपको randomly दिखेंगे. You can change the color as well. Yellow, or let's say green. Can you see that? Everyone can see that? Yes, sir. यस यस सर। And at the same time, मुझे bottom 5 भी ढूंढने हैं. So can I get the bottom? So see top and bottom rules, में you will get the bottom 10 items as well. Look at that. 10 numbers हैं. You will need to make it 5. Can you see? 1, 2, 3, 4, and then 5. ये नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ रहे हैं. वो वाले ऊपर से नीचे की तरफ थे. Top and bottom. Differences पता है? Top and bottom का difference पता है ना? No? जी पता है। Understood. Right? Understood. Wait, ठीक है. Perfect. मान लो एक रूल लगा दिया, रूल को क्लियर करना है तो select the entire column, go to conditional formatting, clear rules for selected cells. That's it. Let's say my boss said again that okay buddy, go to item MRP column, show me only those MRP जो $100 से ऊपर का हो, है ना? कंडीशन आ गई फिर से? आई ना? Yes, sir. यस। अब क्या करना है? We will again go to conditional formatting. Can you see highlight? Highlight में there are a few more rules. Can you see the greater than? So I'll pick the greater than. I type 100. अब 100 से ऊपर के जो भी amount है, it is coming in front of you. At the same time, if I want to see less than 50, let's say less than 50, तो less than पे चले जाओ and type there 50. It will show you both the amounts. I hope you can see that with different color, right? Easy till now? Yes, sir. आप सबके पास ये फाइल है ना, जो लोग भी सिस्टम से लॉग्ड इन है? Yes, sir. Yes, sir. Would you like to try? Or you want me to complete it first? Or you will try at home? मतलब जब हम जुदा होंगे after this class, you want to try after that time or you want to do it now? Just confirm. देखो मैं इसलिए ऑप्शन दे रहा हूँ so that nobody should say कि हमें प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला. You will be getting enough 5 days for all of these practices. Getting me? क्या चाहती है जनता बताओ?
हेलो गाइस, कम ऑन, इतनी भी गर्मी नहीं है कि आप लोग बात ही ना करो। अगर आप लोग ऐसे साइलेंट रहोगे तो आई विल हैव टू टॉक टू माई सेल्फ ओनली। एंड ट्रस्ट मी, आई एम रियली नॉट गेटिंग पेड टू टॉक टू माई सेल्फ। आई एम गेटिंग पेड बिकॉज आई एम लाइक कम्युनिकेटिंग विद यू गाइस। और कम्युनिकेशन तब होता है जब बातें दो तरफा हो, होता है ना। लेट्स से यू गाइस आर आस्किंग मी समथिंग कि सर ये कैसे होगा, एंड आई इज लाइक आई रिमेन साइलेंट। अच्छा लगेगा क्या? हाँ ना, मैं तो नहीं, बोलो, नहीं अच्छा लगेगा ना। नहीं। और अगर मान लो आप एक रिलेशनशिप में, आपका पार्टनर आपसे कुछ पूछ रहा है, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग फॉर 5 minutes और 3 minutes और 2 minutes, will he feel good or will she feel good? Yeah, नहीं सर, नहीं। नो सर। सिंपल है। अपना भी रिलेशन कुछ ऐसा ही है। आप चाहे गुरु मानो, दोस्त मानो, भाई मानो, पार्टनर मानो, आई डोंट केयर, अच्छी बात है मानोगे तो। बट बातें करने से ही सिलसिला आगे बढ़ेगा। बातें करनी है आपको ताकि आपको नॉलेज मिल सके, बातें करनी है मुझे ताकि एट द एंड मैं आपको नॉलेज डिलीवर करके पैसा कमा सकूं। सीधी सी बात है, नहीं? वरना लास्ट में क्या आएगा कि यार ये तो समझ में नहीं आया। आप लोग पूछोगे नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है? सो गाइस, बी अटेंटिव। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो कंफर्म करो, समझ में आ रही है तो भी कंफर्म करो। यस, द वी गॉट इट, वी डोंट नीड टू रिपीट इट। गेटिंग मी? Yes, sir. परफेक्ट। अच्छा, अब हम जा रहे हैं, बोलो। सॉरी टू इंटरप्ट, आई हैव अ क्वेश्चन। दिस Yes. डेटा सेट ये कहाँ पे मिलेगा एक्चुअली? ये डेटा सेट मैंने कल ही शेयर किया था दोस्त, आप नहीं देखे ओके, कल? नहीं थे, बट वो लिंक सेव करना भूल गया था। यू कैन शेयर विद मी द डिटेल्स, कैन शेयर। ओके, डोंट वरी। सर वो कल वाली एक्सेल शीट थी ये क्या? कल वाली ही है। ओके जब तक आपका वी लुकअप चलेगा तब तक कल वाली ही शीट चलेगी। सर, एक्चुअली कल वाली शीट में सिर्फ वो डेट एंड ऑल दिख रहा है। अच्छा, ये आगे नहीं दिख रहा है? यहाँ से स्क्रॉल डाउन, ये लेफ्ट करने का, इधर से ये दिख रहा है हाँ, लेफ्ट, इधर से एक राइट करने का। वो शीट्स नहीं दिख रही है, नीचे रेडी आ रहा है, शीट्स क्या बात कर रहे हो मैम? ये फाइल है ना आपके पास? वीक 1 नेम है फाइल का। हाँ, वीक 1 है ना नेम? कैन यू Yes. शो मी योर स्क्रीन? यस, एक मिनट। बिल्कुल। एंड डोंट वरी, आई विल रीशेयर इट, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट फिलहाल मुझे आप अपनी स्क्रीन दिखाओ सो दैट आई कैन गेट एन आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। कर रहे हो स्क्रीन शेयर? अच्छा, हो रही है ये सर? वीक 1, हाँ ये मेरे को तो हो रही है। ये वीक 1 फाइल है। यस सर। आपको पता है कि आप कौन सा एक्सेल यूज कर रहे हो? हाँ, 2010। नहीं, 2010 तो है, लेकिन कौन सा? गो टू फाइल, कैन यू सी ऑन टॉप, लेफ्ट टॉप में फाइल दिख रही है आपको? ग्रीन कलर में लेफ्ट टॉप पे फाइल पे जाओ। अब ये इधर राइट में देखो क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट एक्टिवेशन रिक्वायर्ड, यस। दिख रहा है ना? इसका मतलब है कि ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, ओके। और पायरेटेड सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट करता ही नहीं है, राइट? तो ये वही लिमिटेड कुछ ना कुछ फीचर ब्लॉक करेगा आपके, इसलिए आपको बाकी की शीट नहीं दिखाई दे रही है। ओके। हाँ, तो एक मिनट रुको फिर भी। बट आपने ब्राउजर से लॉगिन किया है ना? आपने Zoom सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर रखा है, अदरवाइज आई कैन टेक द रिमोट एक्सेस ऑफ योर सिस्टम एंड आई कैन शो यू। बैक जाना एक बार, गो टू बैक। जैसे आप फाइल में थे ना नॉर्मली, होम स्क्रीन पे, हाँ वहां पे आओ, ठीक है? अब ये जो आपका एड्रेस बार है, इसको थोड़ा ऊपर करो, जहाँ पे ऊपर की तरफ ये नहीं, ये नहीं, मैं कैसे बताऊं आपको? रुको 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 रुको, कैन यू सी दिस एरिया? आप यहाँ पे माउस रखो, यहाँ पे जहाँ मेरा एरो है, ग्रीन रेड कलर का एरो दिख रहा है आपको? नो सर। आपको रेड कलर का एरो नहीं दिख रहा आपकी स्क्रीन पे, मैं जो भी कर रहा हूँ? नो सर। मे बी वो She is using our screen, right? So she will not be able to see. या Shreya, can you do one thing? Next Yes. time, whenever you share your screen, make sure that you guys install, and ये सबके लिए है, please install Zoom application in your system, then try to log in your class, because then only I can take remote access and I can show you this thing. ठीक है? ओके सर। है ना? फिलहाल के लिए इसको ऐसे रहने दो, let me take a snapshot so that I can guide you from my screen. ठीक है? Okay. Just give me a moment. What I'm trying to say, because you will get enough space on your screen. Okay. Just stop your screen now. Or let me do it. So your screen was visible like this. ये दिख रहा है आपको मेरी स्क्रीन पे?
मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है मैम? यस प्रिया, सर। अब मैं क्या समझा रहा था आपको कि आपको पहले इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा। मैं इस वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये ओके इतना इतना हाइट नहीं होना चाहिए। आप इस पॉइंट को पिक करोगे और ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे तो इतना स्पेस ही रहता है इसका, राइट? ओके सर। ठीक है, जैसे मेरे दिखता है, मैं मेरा दिखाता हूँ। और ये जो वीक वन यहाँ दिख रही है, ये यहाँ क्यों आ रही है? आई मीन इट शुड नॉट बी हियर बिकॉज ऑफ दिस एरिया, इट इज देयर। और लेकिन आपके बाकी फाइलें क्यों नहीं है? आई एम नॉट श्योर, पता नहीं। मैं एक बार फिर से ये फाइल दे दूंगा, आप ट्राई करना, राइट? यस अब सर। देखो मेरा मेरा एड्रेस बार अगर मैं करके दिखाता हूँ, अगर मैं इसको ऐसा कर दूंगा, ये देखो कितना बड़ा हो गया ना? देखा? ये ऐसा नहीं रखना है हमको, ये ऐसा ही रखना है, सिंपल। यस सर। क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. आपको यहाँ शेड दिखनी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट शोइंग इट टू यू, आई विल रीशेयर इट अगेन। ओके, फिलहाल हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे फोकस करते हैं एवरीवन। दो रूल तो मैंने बता दिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, लेकिन ये सब चीजें क्या है? ये और हाईलाइट में जो बाकी हैं, व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट? लेट्स से आई एम लुकिंग फॉर डुप्लीकेट आइटम इन दिस। क्या आई एम लुकिंग फॉर गाइस? Duplicate Duplicate item. item. डुप्लीकेट। ओके, डुप्लीकेट ढूंढते हैं फिर, ठीक है? तो वो कैसे ढूंढेंगे? यू जस्ट नीड टू गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, कैन यू सी डुप्लीकेट वैल्यूज? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. डुप्लीकेट वैल्यू को हम ढूंढते हैं एंड वी डिड पिक इट। सो जो चीज डुप्लीकेट नहीं आ रही है, मतलब हो सकता है ना कि आइटम यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है। जस्ट गिव मी अ मिनट, गिव मी। कैन यू हियर दिस? ओके, कैन यू सी दिस? सो अगर कोई आइटम डुप्लीकेट नहीं है तो वो क्या है? Unique. हाँ, सो यू विल गेट यूनिक आइटम हियर, लुक एट दैट। यानी कि इसकी और कोई शाखा नहीं है, आई मीन टू से ब्रांचेस। These are unique items, these are not repetitive in this, but some products are repetitive over there. So you can find out the duplicate and unique as well. Apart from this, you also can, let's say, text-wise, you can find out something. Let's say I'm looking for hard drink. I can find out the hard drink. Let's say I'm looking for frozen food. तो अगर बड़ा डेटा हो तो you can find out by typing. और है ना? Clear? Clear? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े? हाँ. ठीक है। अब यहाँ तक तो गुड टू गो है। उसके बाद लेट्स से I'm looking for थोड़ा नीचे आके समझाता हूँ। Let's say I did rating for some cities or let's say some countries about the rating of the hospitality. उसमें से कुछ कंट्रीज हैं जो बहुत अच्छा खेल रही है, कुछ पे let's say the some scores are getting down. So मेरे पास ये सारी, मैं चाहता हूँ कि यार ये 5 स्टार तो है ही, ये 4 स्टार है, 2.5 स्टार है, बट यहाँ वो स्टार दिखने भी चाहिए। ऑलराइट, सो वी गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कैन यू सी आइकन सेट्स? दिख रहा है? जी सर। आप आइकन सेट में जाओ, स्टार रेटिंग के अंदर मिल जाएगा। लुक एट दैट, जहाँ 5 है वो फिल्ड है पूरा विद येलो कलर, जहाँ पर 2.5 है मिड आ रहा है, 3 is also coming as mid, 4 भी 5 के जैसा ही आ जाता है, 1 is empty. Let's say I'm talking about the Wi-Fi signal. Can I get the Wi-Fi signal? Yes, you can get the Wi-Fi signal. Clear? मजा आया? Can I get the color scale? Color scale क्या? अब color scale का पैटर्न अलग अलग है। Let's say green, yellow, red, red, yellow, green, opposite है एक दूसरे के। मतलब इसमें ये है कि color scale statistical charts को दिखाता है। When we talk about statistical measurement, जब highest number है that is coming as green, mid number is coming as yellow or orangish, the last one is red, which is coming as lowest number. I hope you can see. Yes, sir. Yes, sir. Till now, any confusion? No, sir. No, sir. मतलब अभी देख के समझ में आया ना what we are doing? अभी तक समझ में आ रहा है ना what we are doing? Yes, sir. ठीक है। Now, what about the data bars? Data bars is interesting. One is gradient fields, another one is solid field. Let's say solid field में हम कोई सा भी color लेते हैं. It is showing me wherever we have the highest number, it is coming with full of the color. Wherever we have the lowest number, it is coming with the less. I mean, the width, the height is really less. आप इसे अगर कुछ ऐसे देखते हैं ascending order में, so it's gonna be like this. Look at that. ऐसे तो क्या मेन डेटा सेट पे इसको ट्राई करें? बिल्कुल, यू कैन। यहाँ पे इफ यू वांट यू कैन अप्लाई द कलर फील्ड, यू कैन अप्लाई द स्टार्स आइकन, और ये एरो दिख रहे हैं आपको अलग अलग। इवन यू कैन अप्लाई द ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट, आई मीन देयर आर 3 different lights. The highest number will be coming as green, the mid number will be coming as yellow, the lowest number will be coming as red. Okay, है ना? बट यहाँ पे आपको लोएस्ट या ग्रेटेस्ट का पता नहीं चलता, ये कॉम्बो है पूरा। हाँ, but if you go with the color bars like data bars, you can find out easily. Now the 4711 is the highest number, 344 is the lowest number. Can you see that?
Yes, नो sir. Yes, sir. और ये आप अपने डेटा के साथ में ही अगर ये चीज दिखाओ तो कितना अच्छा लगता है ना मतलब जी यू डोंट जी नीड टू मेक चार्ट इनिशियली यू कैन शो योर डेटा इन दिस मैनर एंड इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग क्यों क्योंकि क्रिएटिविटी दिखती है आपकी नो यस मे बी Yes, Yes. sir. so any question from conditional form I think देखो बाकी सारी चीजें थोड़ी सी मेहनत करके आपको ढूंढनी भी पड़ेगी यू कैन सेट योर ओन न्यू रूल लेट्स से आप किसी भी एक रूल को पिक करके कुछ नया बना सकते हो कोई फंक्शन अप्लाई कर सकते हो सो दिस discussion will be the lengthy one if we go with the more detailed information about the conditional formatting but basic level पे इतनी जानकारी is enough कि किससे होता क्या है क्लियर है Yes, जी sir. Yes, sir. Yes. ठीक है perfect okay now we are working on table which is fine but table बना कैसे अगर मेरे पास raw data हो तो वो table बनेगा कैसे getting me करके देखें अगर आपके पास बिल्कुल ऐसा raw data हो कैसा like this one so do you know how to make table on this पहले के जमाने में लोग बोलते थे कि पहले डेटा को सेलेक्ट करो कंट्रोल ए से ये आपको नहीं करना है यू डोंट नीड टू डू दिस दिस ओल्ड फैशन नाउ देयर आर टू पॉसिबल वे टू लाइक कीप दिस डेटा इनटू टेबल जरूरी होता है और टेबल सिर्फ एक ही टाइप का होता है इफ यू विल हियर दिस आउट की वर्टिकल टेबल होता है हॉरिजॉन्टल होता है देयर इज नथिंग लाइक हॉरिजॉन्टल वो टेबल होता ही नहीं है दैट इज हॉरिजॉन्टल डेटा इट्स नॉट हॉरिजॉन्टल टेबल बट वी कॉल इट हॉरिजॉन्टल टेबल क्योंकि कहीं ना कहीं हमें नामकरण तो करना ही था है ना राइट Yes, sir. it's something like have you like did you hear क्या तो नाम है प्लूटो हैव यू हर्ड अबाउट प्लूटो Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है प्लूटो अच्छा नाम है ना जी है ना बट हमारे प्लैनेट यानी हमारे सोलर सिस्टम से वो आउट है थोड़ा सा आउट है बिकॉज उसको हाँ। पूरा टाइम कंप्लीट करने में लग जाता है ग्रह या क्षुद्र ग्रह हैव यू हर्ड अबाउट इट No, sir. नो No. साइंटिस्ट इसको क्षुद्र ग्रह क्यों कहता नहीं पता नहीं सर बोना हाइट की वजह से मतलब साइज छोटा है इसलिए शायद हाँ बोना ग्रह इसके लिए नहीं बिकॉज इट ट्रांसलेट डायरेक्टली टू डॉर्फ प्लैनेट इन इंग्लिश इन 2006 the international astronomical union IAAU changed Pluto official classification from a full planet to dwarf planet क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम की तरह जल्दी जल्दी क्विकली कवर नहीं करता है सारी चीजें और छोटा भी है बट एक बात बताओ इससे प्लूटो को ₹1 का भी फर्क पड़ा नहीं या आप में से कोई भी अगर इसका नाम चेंज करता है तो उससे किसी बात का कोई फर्क पड़ता है No. नहीं पड़ता ना तो ओल्ड इन्फॉर्मेशन न्यू इन्फॉर्मेशन से भी मेरे डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वट एवर न्यू थिंग यू आर लर्निंग यू जस्ट नीड टू पिक एनी ऑफ दिस थिंग इन अंडर योर डेटा सेट एरिया अगर मैं यहां जाके कर रहा हूं तो ये काम गलत हो जाएगा यहां कर रहा हूं तो इट विल जस्ट select this area only but when you go here in this area you need to go to insert click on table एक तो ये तरीका है to get this pop up or you can press control T as in tango clear दोनों ही केस में create table का एक ऑप्शन आएगा क्लियर Yes, sir. अब जब ये आता है तो ये आपसे पूछता है माय टेबल हैज अ हेडर ऑब्वियसली द फर्स्ट रो इफ यू नो दैट दैट इज माय हेडर पॉइंट हेडर बोलो व्हाटएवर वो मेरा हेडर पॉइंट है तो ठीक है कीप इट सेफ ऐसे ही अगर गलती से आपने अनचेक किया और ओके किया सो इट विल क्रिएट इट्स ओन हेडर पॉइंट कैन यू सी दिस जो कि बेकार लग रहा है बट इफ यू हैव योर ओन प्रेस कंट्रोल टी लीव इट लाइक दिस एंड देयर वी गो डिड यू सी दिस नाउ Yes, sir. अब ये बन गया आपका टेबल बन तो गया और एल्स वी आर सपोज टू डू अभी भी ये गंदा ही दिख रहा है बट अभी हम लोग उस पे बाद में बात करेंगे ऑलराइट सो यू कैन गिव सम न्यू लुक टू योर टेबल लुक एट दिस यू हैव लाइट कलर यू हैव मीडियम कलर यू हैव डार्क कलर कैन यू सी ऑल ऑफ यू Yes, sir. but let's say I want to make my own मैं चाहता हूं मैट्रिक्स इफेक्ट देना background should be black the text should be green can it be possible yes just go here and सबसे नीचे आएगा न्यू टेबल स्टाइल just go there नाम दे सकते हो उसका उसके बाद होल टेबल you have to pick whole table if you want to make right अब let's say you are going for format में आप जाते हो font border fill में let's say I'm choosing the black color यहाँ पे जाके पैटर्न भी चूज कर सकते हो if you want इसके नीचे
बट अभी के लिए मैं पैटर्न पे नहीं जा रहा. एंड आई एम चूजिंग फॉन्ट. इट शुड बी, लेट्स से, येलो कलर. ओके, बोल्ड इटैलिक. ओके, आई गेट दिस काइंड ऑफ टेबल. कहां पे? यहां पे जाओ. कैन यू सी ऑन टॉप? Everybody, can you see this? Yes, sir. Let's say I want to make modify again, whole table format. I want to convert the text into green color. Okay, there we go. I hope you're liking it. हाँ, choice color की आपकी हो सकती है, but I'm telling you the operation what I'm performing here. I hope you are understanding it. If you don't like, fine, but I hope you're understanding it. Yes, Yes, yes. sir. उसके अलावा what else we can do? Can you see header row यहाँ पे? इसको अनचेक करोगे, header row गया, पता नहीं कहां पर चला गया. If you want it back, Can you see filter button? Filter अनचेक कर दो, filter गया, आ गया. बट ये काम कंट्रोल शिफ्ट एल से भी हो सकता है. कंट्रोल शिफ्ट एल गॉन, कंट्रोल शिफ्ट एल कमिंग अप. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. उसके अलावा if you want to highlight the first column, oops, आप दूसरे डिजाइन में कुछ इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो, like this, but the first column is getting highlighted because I'm choosing this, right? कुछ लोगों को हाईलाइट करके दिखाना, जैसे लास्ट कॉलम. यस, लास्ट कॉलम भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ब्लेंडर रोज का मतलब है डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ी बहुत चीजें सजावट के लिए भी है. दैट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू कीप. व्हाट डू यू मीन बाय टोटल रो? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आया कहां से? जब भी आप टेबल बनाते हो, यू गेट टेबल डिजाइन. और ये बोनाग्रे वाला एग्जांपल मैंने इसलिए दिया था क्योंकि समटाइम्स यू विल बी गेटिंग अ डेटा लाइक दिस. व्हाट काइंड ऑफ डेटा आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ डेटा जहां हेडर लेफ्ट में होता है. ये कोई टेबल नहीं है. टेबल होता तो फिल्टर होता, जैसे यहां पर है. कैन यू सी दैट फिल्टर ऑन टॉप? Yes, sir. Yes, sir. 99.99% you will be getting such kind of table. ये टेबल है ही नहीं. अगर होता तो यहाँ टेबल डिजाइन आता ना. जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग हियर, तो यहाँ टेबल डिजाइन आ रहा है, करेक्ट है ना? नहीं? हेलो, हाँ. ठीक है. तो बेसिकली व्हेन आई गो हियर आई कैन सी सारे एक्सपेरिमेंट. ऑल्सो यू कैन गिव इट अ नेम. आप इसका नामकरण कर सकते हो, और ये बहुत जरूरी भी है. ये वीलुकअप में आपको पता चलेगा कि टेबल नेम व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. ओके, फिलहाल आई एम कीपिंग नेटफ्लिक्स बिकॉज इट्स नेटफ्लिक्स डेटा. व्हाट एल्स? व्हाट इज द मीन ऑफ दिस टोटल रो? खैर, ये मैं अपने टेबल पे दिखाता हूँ. सो ये मेरा टेबल है. दिस टेबल नेम इज ऑल्सो देयर, रिटेल शॉप. फाइन, परफेक्ट. इस टोटल रो का मतलब है इफ यू हैव सेल्स डेटा. अभी कोई टोटल नहीं आ रहा ना नीचे, नहीं आ रहा ना? चलो, ठीक है. मैं जैसे ही टोटल पे क्लिक करूंगा टेबल डिजाइन में, लुक एट दैट, यहाँ टोटल लिखा हुआ आ जाएगा. एंड एट द एंड आई विल बी गेटिंग दिस टोटल ऑफ दिस सेल्स डेटा. तो क्या ये ड्रॉप डाउन में जाऊं तो और क्या मिलेगा? यू कैन डू एवरेज एज वेल एट द सेम टाइम. यू कैन डू मिनिमम नंबर एट द सेम टाइम. यू कैन डू मैक्सिमम नंबर एट द सेम टाइम. कैन यू सी? कुछ नहीं चाहिए तो नन. आई होप यू अंडरस्टूड द एक बार बेनिफिट दिमाग ऑफ. दिखा सकते हैं. इसमें दिखाने जैसा कुछ नहीं है. इस टेबल ऑप्शन में जाओ, टोटल रो को हटा दो तो हट गया. टोटल रो दोबारा लगाओगे तो लग जाएगा नीचे, और आपको इस सेल्स वाले डेटा का टोटल डेटा मिल जाएगा. इफ यू वांट टू सी काउंट नंबर्स की कितना डेटा है, ये जो दूसरे ऑपरेशंस हैं, अब वो भी परफॉर्म आप यहाँ कर सकते हो विद इन अ क्लिक. आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं. समझे? हाँ. और इसके अंदर एक और बहुत अच्छी चीज है, वो है स्लाइसर. बट इस स्लाइसर को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डैशबोर्ड में. ये रहा स्लाइसर. अब यहाँ तो क्या है, क्यों फायदा है स्लाइसर का? जैसे यहाँ पर मान लो मुझे रेगुलर का ही देखना है सेल, तो मैं यहाँ जा रहा हूँ बार बार फिल्टर पे, देन आई एम पिकिंग रेगुलर, देन आई एम क्लिकिंग ऑन ओके, फिर मुझे यहाँ टोटल सेल दिखेगा. मुझे इसका कैसे फायदा उठाना है? अब मेरे इस कॉलम का नाम है आइटम फैट कंटेंट. ये रहा आइटम फैट कंटेंट. फाइन, ओके. कैन यू सी 2 आइटम्स आर देयर, लो फैट एंड रेगुलर. आपको दिख रहा है मैं कैसे एक बार में ही सारे काम कर पा रहा हूँ? इट्स काइंड ऑफ रिमोट कंट्रोल फॉर यू. अंडरस्टूड? आप इसको कलर भी दे सकते हो अपनी मर्जी का, और यू कैन गिव अ कलर लाइक दिस. डिड यू सी व्हाट आई एम डूइंग गाइस? Yes, sir. Yes, sir. फिल्टर कर रहा हूं मैं स्लाइसर की मदद से. एंड इट इज गोना बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू. और कब? लेट्स से मैं आपको एक डैशबोर्ड दिखाता हूं. वन ऑफ माय कैंडिडेट ही प्रिपेयर्ड दिस. यहां पे स्लाइसर है, बिल्कुल है. कैन यू सी दीस थिंग्स? ये स्लाइसर्स, लुक एट दैट. ये पूरे चार्ट पे काम करते हैं. अंडरस्टूड? आई होप यू कैन सी Yeah. Yes, sir. एवरीबॉडी, है ना? तो इसके लिए काम आता है स्लाइसर. टेबल के लिए काम नहीं आता है, बट इट्स ओके.
So टेबल भी बनाना हमने सीख लिया, राइट? एनी क्वेश्चन फ्रॉम टेबल? We did learn data validation, we did learn conditional formatting, we did learn how to create a table. अब देखा जाए तो मेरे पास 2 टॉपिक और बच रहे हैं, पर दोनों थोड़े बड़े टॉपिक है। लॉजिकल में थोड़ा आपका दिमाग लगेगा, इफ फंक्शंस जो है उसमें स्टैटिस्टिकल और बाकी रिलेवेंट फंक्शन है। आगे मैं सारी चीज आज करवा भी नहीं सकता, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज, क्योंकि जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे ना, बोलोगे सर थोड़ा सा कम पढ़ाओ, आगे पढ़ लेंगे। So tell me, are you able to understand the table concept? Do you have any question for me? Hello? No, sir, Mic not right testing. now. Clear, sir. All clear. All clear? Crystal clear या बिल्कुल ऊपर से क्लियर? Crystal clear, sir. ठीक है। I can give you this raw data. If you want, you can try making a table on this. 3 MB की फाइल है। Yes, please. Yes, sir. I gave you the data, download in your system, try Control T and figure out कि वो क्या क्या कर सकता है ना? ये तो था टेबल तक। उसके अलावा लॉजिकल फंक्शंस तक हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट द इफ फंक्शंस एंड एवरीथिंग, ओके? ठीक है? Yes, और sir. आज Yes, sir. आज मैं एक टास्क भी दूंगा एंड यू विल ट्राई दोस टास्क। ओके एवरीबॉडी? Okay, sir. Okay, sir. लॉजिकल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लॉजिकल फंक्शंस। कुछ लॉजिक ऐसे होते हैं जो सच में लॉजिक छुपा होता है, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉजिकल फंक्शन, लेडीज एंड जेंटलमैन। और कुछ लॉजिक्स ऐसे होते हैं जहां कोई लॉजिक ही नहीं होता, जैसे कि इफ में लॉजिक है, एंड में लॉजिक है, और में लॉजिक है, स्टूपिड सा है पर है, और यहां कोई लॉजिक ही नहीं है फिर भी ये लॉजिक है। ओके, बताता हूं। इफ का मतलब है, लेट्स से यू हैव 500, आई नो दैट 500 100 से बड़ा है, देयर वी नो, राइट? इफ यू आर जस्ट पिकिंग इट, इफ यू आर गिविंग दिस एंड यू आर सेइंग ये अपने आप ही ट्रू आएगा, बट ट्रू की जगह मुझे लिखना है सेफ या डेंजर, राइट? लेट्स से दिस गाय इज 18 years old और यहाँ पे भी 18 है, लेकिन इस बंदे की एज है 20, करेक्ट है ना? मैंने यहाँ पे लिखा इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस। समझ में आया कि पहले मैं ये लिख रहा हूँ इफ, लेकिन इफ यहाँ लिखा ही नहीं मैंने डायरेक्ट दे दिया। तो इफ आई एम यूजिंग इफ, अगर बोल रहा है लॉजिकल टेस्ट दो, मैं बोल रहा हूँ ये जो एज है पे चेक करो कि वो 18 साल से ऊपर है कि नहीं, और अगर ऐसा है तो देखो यहाँ पे कॉमा लगाते क्या बोल रहा है, वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स, है ना? बोल रहा है ना जी। मैं चाहता हूँ मैं ट्रू की जगह कुछ और लिखूं, लेट्स से आई एम टाइपिंग, अब कुछ भी लिखना है तो उसके लिए यू विल हैव टू प्रोवाइड इन्वर्टेड कोमा, कुछ और लिखना है तो ट्रू फॉल्स के लिए कुछ और नहीं चाहिए। सो आई एम सेइंग अगर ये 18 से ऊपर है तो एडल्ट है, और अगर इफ इज नॉट ग्रेटर देन 18, गेटिंग मी एवरीबॉडी, ओके है ना? तो मैंने बोल दिया माइनर है, या फिर लेट्स से टीन, अंडरस्टूड? Yes, sir. Teenage or teen, whatever you say. So this guy is an 18 or greater than 18. Let's say अगर यहाँ पे 18 भी किया तो भी 18 कहलाएगा, क्यों? क्योंकि फंक्शन गलत है। फंक्शन में मैंने बोला greater than. If I'm saying greater than or equal to 18, then in that case he is adult. Let's say if I'm saying he is 17 years old, then teen. This person is teen. If I'm saying 23, obviously adult. बात समझ में आई? Yes, sir. बात समझ में आई? Okay, perfect. And क्या करता है और क्या करता है मैं यहाँ बताता हूँ। So for an example, Harry's and other candidates, they are having some scores, but ये मान लेते हैं कि these scores are passing marks, यहाँ पे मैंने 770 लिख दिया, 70, right? अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट स्कोर जो 63 है, क्या वो ग्रेटर देन है 70 से? No. नो। 62 है क्या? नहीं. अच्छा, इंग्लिश का स्कोर 73 है, Yes. Yes. और सोशल स्कोर 92 तो yes. है ना? तो यानी 2 सब्जेक्ट में ये पास है, 2 सब्जेक्ट में ये फेल है। व्हाट शुड बी द फाइनल रिजल्ट? Fail. नॉर्मली Fail. फेल होना चाहिए, है ना? करेक्ट है? हेलो? हाँ Yes, sir. ठीक है ना? लॉजिक अपना इंसानी लॉजिक तो यही कहता है ना कि भाई तू 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ है, करेक्ट? Yes. मान लो और ने रिश्वत ले ली, तो मैं लिख रहा हूं इक्वल टू और कहता है गिव मी एनी कंडीशन ट्रू, आई विल गिव यू फाइनल आउटपुट एज ट्रू। समझे? मैं बोल रहा हूं कि 63 इज ग्रेटर देन 70, ये रॉन्ग है ना? देन आई एम पुटिंग अ कॉमा, आई एम सेइंग इंग्लिश स्कोर इज ग्रेटर देन 70 व्हिच इज करेक्ट। 2 अलग-अलग लॉजिक दिए मैंने, करेक्ट है ना? Yes. Yes. अब मैं इसको एंटर कर रहा हूं तो ये बोल रहा है ट्रू। क्यों बोल रहा है ट्रू? क्योंकि एक लॉजिक करेक्ट है, एक लॉजिक गलत है। गलत है उसको इसको मतलब ही नहीं, अगर एक सिंगल लॉजिक भी करेक्ट आ गया, ससुर का नाती तुम पास हो। नहीं समझे? हेलो?
हेलो, तो हम लोग इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन दे सकते हैं कि उससे नहीं ज्यादा आप भी? मल्टीपल दे सकते हो। मैं तो ये बोल रहा हूँ जितनी भी कंडीशन है, गलती से अगर एक भी ट्रू हुआ तो आउटपुट फाइनल विल बी ट्रू। अब मैं समझा रहा हूँ इसको कुछ अलग अंदाज में। इक्वल टू, आई एम सेइंग इफ यूज किया, देन आई एम यूजिंग और, then I'm saying science score is greater than passing marks. Not possible. Maths score is greater than passing marks. Again, not possible. So English score is greater than 70. Fine. He's passing this. The last, but not the least, social, right? Everybody? अब I'm Yes. locking the bracket क्योंकि मेरा initial bracket close करने का टाइम आ गया. Then I'm putting a comma. अगर अब ये कह रहा है value if true, value false. मैंने बोला अगर value true हो तो pass कर देना और value false आए तो make him fail, right? But look at this. He's passed because he's passed in two subjects. According to OR, give any condition true, it will return you as true. The final output. Understood? Everybody? Yes, sir. Yes, sir. अगर इस और की जगह एंड होता तो all condition should be true, then only it will give you as true. मैंने यहाँ जैसे एंड लिखा ये फेल हो गए वहां से, और इसमें कोई पास नहीं होगा क्योंकि सबके स्कोर ऐसे ही हैं लल्लू राम जैसे। हाँ, लेकिन अगर मैंने और यूज किया है, सो गाइस आई एम टेलिंग यू, और कहता है कि गिव मी वन लॉजिक ट्रू, आई विल गिव यू फाइनल। लेकिन इसमें भी एक सब्जेक्ट में एक बंदा फेल है। क्यों? बिकॉज नन ऑफ दी स्कोर्स आर ग्रेटर देन 70। कैन यू सी? Yes, sir. एक भी ग्रेटर देन 70 है क्या? नहीं. लेकिन गलती से मैंने हरक्यूलिस को साइंस में पास कर दिया, लेट्स से 75, देन ही इज पास इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। डिड यू सी दैट? राइट, है ना? अब आता है नोट। आप बोलोगे ट्रू तो ये बोलेगा फॉल्स, इक्वल टू, देन आई एम सेइंग नोट, NOT नोट, देन आई एम पिकिंग ट्रू, ये बोलेगा फॉल्स। आप बोलोगे फॉल्स तो ये बोलेगा ट्रू। ये अपोजिट चलता है हमेशा। सो लेट मी डिस्क्राइब यू थ्रू Copilot. So सबसे पहले एक लाइन में टेक अवे। लॉजिकल फंक्शन में एक ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें कंडीशन को चेक करके ट्रू या फॉल्स लौटाता है, राइट? लॉजिकल मींस इफ फंक्शंस, कोई कंडीशन सही हो या गलत, उसी के आधार पर अलग अलग आउटपुट देगा। जैसे इफ कंडीशन वैल्यू इज ट्रू, वैल्यू फॉल्स, फाइन, है ना? देन वी हैव एंड, कई कंडीशंस को एक साथ चेक करता है, राइट? सभी कंडीशन ट्रू हो देन ओनली यू विल गेट द ट्रू, एल्स यू विल गेट द फॉल्स। एक भी फॉल्स हुआ तो यू विल गेट द फॉल्स। अंडरस्टूड? Yes, sir. देन वी हैव और कहता है कि कई कंडीशंस में से ट्रू एक भी हो जाए तो फाइनल आउटपुट विल बी ट्रू, अदरवाइज सब फॉल्स। जब फॉल्स सब आएगा जब सारे फॉल्स हो। फिर है द नोट, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बना देता है। सिंपल। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस सर। सिंपल। नोट उल्टा रिजल्ट देता है, और कोई भी एक कंडीशन सही हो, एंड सभी कंडीशन सही होने चाहिए, इफ कंडीशंस के आधार पर डिसीजन। दैट्स इट। क्लियर है सबको? एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, मैं ये फाइल दोबारा देता हूं आप लोगों को, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल टेल यू कि कहां पे आपको असाइनमेंट मिलेगा। ओके, व्हेन यू गो टू गूगल ड्राइव, जो मैंने कल भी दिया था, आई विल शेयर इट अगेन। आपको आपका फोल्डर मिलेगा वही बैकअप नोट्स, राइट एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है, पहले मैं लिंक शेयर कर देता हूं जिसको भी लिंक कल नहीं मिला या किसने कॉपी नहीं किया तो। I'll share this link with all of you. और उसके बाद में I'm telling you, आप जाओगे इस क्लास असाइनमेंट में। जैसे क्लास असाइनमेंट में एक्सेल में जाओगे, you will get this PDF and this is coming with very basic questions. हाँ, कुछ ऐसे भी होंगे जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, जैसे VLOOKUP and all, आप उसको छोड़ देना अगर VLOOKUP आया तो। Otherwise, these are some basic questions which you have to solve. Is that okay? यस सर। Is that okay, everybody? Yes, sir. ठीक है। Now let me share this file with those people who were not able to save it yesterday. So I'm sharing it with chat box. Just download it from your chat and let me know that are you able to do it or not. Baki practice. If function is a statistical function, we will talk